Good morning, students. Today in this video we will be taking up the remaining part of your chapter 3rd that talks about Delhi Sultans. We have discussed how Delhi became an important center and how Tomar Rajputs and Chauhan Rajput made Delhi an important center, a capital, and how after the prosperity of Delhi, the foreign invaders started capturing and making Delhi their own capital. How the transformation of Delhi into a capital happened. We have all discussed all these things. We have discussed the importance of the people who write history, historians, how they praise the king and how they write about the tarikhs and why do they do such things. They have been doing this for rich awards, how they have advised the rulers to preserve an ideal social order, and how we have seen how they advocated the birthright and gender distinctions. And Rajia's example was a very good example to understand this thing, that a female sultana was not accepted even by the historians, leave apart the other noble people. And we have understood how from a garrison town Delhi start gradually growing up as an empire, how the Delhi Sultanate expanded. We have understood all these things. We have understood that Ghiyasuddin, Balban, Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq have done a great to extend to make Delhi a very powerful place all over the India. We have seen how the campaigns which Muhammad Tughlaq took began, and how far he has gone till the south. And we have understood about the interior expansions also, and the external frontier expansion also. That was because of the military expedition also. Now by this time we have understood that the Delhi Sultans were not they were not in favor of going back to their native land. They have started taking India as their own country, and they have started building important buildings also over there. And we have studied about 5 important mosques which have been built in Delhi, and we have learned their name and understood what is the meaning, what was the importance of imam over there. So in this particular section we will be talking about the we will be having a closer look of the administration and consolidations, especially under Khiljis and Tughlaqs. एंड बिफोर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई वो ये हुई कि जो एक बर्थ राइट वाली बात जो चल रही थी और जो एक पर्टिकुलर क्लास के पास ही पावर्स थी, वो जो थी सुल्तान इल्तुतमिश ने ब्रेक किया उस चीज़ को। उसने इंस्टेड ऑफ नोबल्स को पावर देने की जगह जो उसके स्लेव्स थे, जो उसके ट्रस्टेड स्लेव्स थे, स्लेव्स जो उसने मिलिट्री के लिए स्पेशली परचेज किए थे, जिनको बंदगन्स बोलते थे, उनको उसने फेवर करना शुरू कर दिया। और उनको उसने ही स्टार्टेड गिविंग देम स्पेशल पोजीशंस इन हिज empire, because for him they were more reliable than the governors or the aristocrats, because it was very difficult for them while sitting in Delhi to control the faraway lands. And many a time they have seen a situation where these chieftains or these aristocrats has opposed them, has challenged their power. So these slaves, because these slaves were their property, you can say कि उन्हीं का सब कुछ था, जो भी कर रहा था उनके लिए वो सुल्तान ही कर रहा था. तो they were very loyal to the sultan. And especially when a sultan is giving such a big honor to a slave, he psychologically उसकी बहुत जिसको कहते हैं वफादारी सुल्तान के साथ जुड़ जाती है, ऐसा हो रहा था. तो इल्तुतमिश ने सबसे पहले अपने स्लेव्स, ये जो बंदागन्स थे, इनको इस तरह से उसने इस
ये जो गवर्नर्स का जो चैलेंज आता था उसको इस तरह से उसने एनकाउंटर करने के लिए ये स्ट्रैटेजी अपनाई. ही स्टार्ट गिविंग लाइक पावरफुल पोजीशन टू हिज स्लेव्स, एंड दिस सेम पॉलिसी वाज कंटिन्यूड बाय खिलजीज एंड तुगलक. दे कंटिन्यूड दिस system of bandagans, and they also give opportunity to the people who are from humble birth, लाइक जो कि बहुत हाई उनको पोजीशन पॉलिटिकली जर्नल्स और गवर्नर्स को अपॉइंट नहीं किया, बल्कि जो इन द डायलॉग बॉक्स on page number 38 you will find out some examples like Sultan Muhammad Tughlaq appointed Aziz Humar, a wine distillator, Firoz Hazam means barber, Manka Tabak, that was a cook, and 2 gardeners Ladda and Pira to high administrative post. एक आपने एक नाई को इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दे दी तो ऑब्वियसली ही विल बी लाइक फुल ऑफ प्रेज फॉर यू. उसकी लॉयल्टी को कोई ब्रेक ही नहीं, शेक ही नहीं कर सकता. तो इस चीज को कॉन्टिन्यूशन में रखा. दिस वॉज वेरी हेल्पफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लाइक नो रिवॉल्ट फ्रॉम सच काइंड ऑफ पीपल बिकॉज दे आर ऑलरेडी इंडेबिटेड. वो तो राजा की वैसे ही बहुत ज्यादा फेवर में होंगे कि उनको जो समाज उनको कैटेगराइज करता था या डिस्क्रिमिनेट करता था. दी सुल्तान हैव गिवन देम स्पेशल सुपर पावरफुल पोजीशंस, तो हाउ दे गो अगेंस्ट द सुल्तान्स. So like Tariq जो लिखते थे, they have criticized like Delhi sultans for appointing the low and base born to high offices. कि कैसे दे सकते हो आप, इनका कुल ऐसा नहीं है. नोबल्स तो रिवॉल्ट कर ही रहे थे. इवन जो तारिक लिखते थे, बिकॉज we have earlier read in this chapter that they like advocate birthright and so gender distinctions. So this was against their policy. This was against what they were doing earlier. So they start criticizing the sultan for this. That what are you doing? You are giving these special powers to these people who are like very low born, मतलब जन्म के हिसाब से. Okay. So the point which you need to learn over here कि ये जो special privileges जो बंदागन्स को दिए गए, ये इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया, and this was continued by the Khiljis and Tughlaqs. Now let's understand about how the military commanders were appointed and how they were getting the revenues, how they were like bearing the cost of the army, what services they are giving to the sultan, and in return what revenues, how the revenues they were getting the revenues, कैसे हुआ. तो उसको समझने के लिए we need to read on page number 39. Like the earlier sultans, the Khiljis and Tughlaq monarchs appointed military commanders as governors of territories of varying size. These lands were called इक्ता. एक लैंड उनको दे दी जाती थी, उनके गवर्नर उनको बना दिया जाता था, ये केयर टेकर, या आपको इसका आपको होलसोल बना दिया, आप इसको मैनेज करोगे. और ऐसी लैंड्स को इक्तास बोलते थे, और जो इक्तास के होल्डर होते थे उनको इक्तादार या मुक्ति बोलते थे. अब व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द मुक्ति? द ड्यूटी ऑफ द मुक्ति वाज टू लीड military campaigns and maintain a law and order in their economies. अपने राज्य, अपने क्षेत्र में उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना है, और बाकी उन्होंने मिलिट्री जो कैंपेन्स चल रही थी उनमें उनको पार्टिसिपेट करना है. And in exchange of their military services, the Mukti collected the revenue of their assignment as salary. जितना भी रेवेन्यू उन मुक्तिस को उस पर्टिकुलर इक्ता से, उस लैंड से आता था, उसको वो अपनी सैलरी में एडजस्ट करते थे. एंड दे ऑल्सो पे देयर सोल्जर्स फ्रॉम दीज रेवेन्यूज. कंट्रोल ओवर मुक्तिज वर मोर इफेक्टिव इफ देयर ऑफिस वाज नॉट इनहेरिटेबल एंड इफ दे आर असाइंड इक्ता फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बीइंग शिफ्टेड. यानी कि शिफ्ट भी करते रहते थे उनको जो सुल्तान थे, ताकि एक ही जगह पे आके उनमें इतने पावरफुल ना हो जाए कि वो ही रिवोल्ट करने लगे. तो शिफ्टिंग वाज देयर, और इनहेरिट भी नहीं है. ऐसा नहीं कि पापा के बाद बेटा की भी शिफ्टिंग करनी है, तो ऐसे हेरिडिटरी फॉर्म में तो वो चलता नहीं था. तो these harsh condition of service were rigorously imposed during the reign of reigns of Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq. क्यों? क्योंकि उनको मेंटेन रखना था, पावर अपने अंदर रखनी थी. यानी कि this is showing that they were very smartly like manipulating these things so that they no governor can get like more power, and no governor can ever challenge them. Accountants were appointed by the state to check the amount of revenue collected by the muktis. Now there was an accountant which was like seeing if the muktis are, they should not like
they should not collect the taxes, they should not accumulate the money before or beyond the limit which has been set by the sultan. ऐसा ना हो कि वो दुगना लेके और बहुत ज्यादा पैसा एकत्रित कर ले और राजा के लिए या सुल्तान के लिए चैलेंज बन जाए. तो एक अकाउंटेंट अपॉइंट किया जाता था जस्ट टू चेक कि कितने, वो रिकॉर्ड रखता था कितने सोल्जर्स हो गए, इतनी सोल्जर इसके पास होने चाहिए, इससे ज्यादा हुआ तो ही कैन बी अ थ्रेट. तो यू सी हाउ इफेक्टिवली दे वर लाइक मैनेजिंग द थिंग्स. दिस इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू understand about their administrative policy. As the Delhi Sultan brought the hinterland of the cities under their control, they forced the landed chieftain. अब वो जैसे जैसे जगह जो है अपने काबू में कर रहे हैं, तो जो ऑलरेडी वहाँ पर समंताज बोलते थे, जो ऑलरेडी वहाँ के रिच लैंडलॉर्ड्स थे, उनको वो कंपेल करते थे कि हमारी अथॉरिटी जो है वो मानो, अदरवाइज उनको मार दिया जाता था. Under Alauddin Khilji, the state brought the assessment and collection of land revenue under its control. The right of local chieftains to live taxes were cancelled. अब तुम कुछ नहीं करोगे. And they were forced to pay tax. और जो चीफ थे वहाँ के, जो लोकल उस टाइम के थे, जिस भी लैंड पे वो कब्जा करते थे, पहले से जो वहाँ पर रूल कर रहे थे या मैनेज कर रहे थे या टैक्सेस ले रहे थे, they made them to pay the taxes. The Sultan's administrators measured the land and keep careful account रखता था. Some of the old chieftains and landlords served the Sultan as revenue collector and assessors. अब 3 तरह के टैक्स लिए जाते थे उस टाइम में. जो खेती बाड़ी पे लिया जाता था, खराज बोलते थे, एंड अमाउंटिंग टू द 50% ऑफ द प्रेजेंट प्रोड्यूस. जितनी भी फसल होगी 50% जो है वो सुल्तान को जाएगा. सेकेंड, वो कैटल्स पे लगाते थे, और थर्ड, वो हाउसेस पे टैक्स लगाते थे. सो जस्ट रिमेंबर दैट देयर वर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस व्हिच वर बीइंग लाइक लाइड ऑन द पब्लिक ओवर देयर. और जो ये खराज है आपको पता होना चाहिए, इट वाज द टैक्स व्हिच वाज ऑन द कल्टीवेशन एंड इट वाज 50% ऑफ द पेजेंट्स प्रोड्यूस. जो भी फसल होती थी उसका 50% जो था वो था ये खराज. It is important to remember that large part of the subcontinent remained outside the control of the sultans. It was difficult to control distant provinces. जो दूर के इलाके हैं, मैंने पहले भी आपको बोला कि कम्युनिकेशन नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था. It was very very difficult to control far off places like from Delhi to Bengal. It was approximate 1200 to 1500 किलोमीटर of distance. तो इतने डिस्टेंस पे काबू रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल था. और बाकी जो उन्होंने गैंगेटिक प्लेन्स, आपने पढ़ा था ना जब हमने पढ़ा था कि इंटरनल एक्सपेंशन में उन्होंने गैंगेटिक प्लेन्स को क्लीन करके, फॉरेस्टेड एरिया को क्लीन करके वो ज़मीन किसानों को दी थी ताकि टैक्स आ जाए. उसको भी जो था बहुत मुश्किल हो रही थी रूलर्स को, जो उसको पेनिट्रेट करने में. और लोकल जो समंतास थे, चीफटेंस थे, वो बार बार रिवोल्ट करते थे. और क्योंकि एवरीबडी वांट पावर, एवरीबडी वांट टू बी पावरफुल, तो वो रिवोल्ट वगैरह होते ही रहते थे. तो समटाइम रूलर्स लाइक अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक कुड फोर्स देयर कंट्रोल इन दीज एरियाज, लेकिन वो छोटी ड्यूरेशन के लिए. जब वो वापस कब्जा करके आ जाते थे 1-2-3 साल के बाद, फिर से वो रिवोल्ट करते थे, फिर चले गए. दिस वॉज हैपनिंग, दिस वॉज एन ऑन गोइंग प्रोसेस. लाइक चीफटेंस वापस अपनी पावर पाना चाहते थे और वो करते थे. अब इसके साथ साथ बाहर के इन्वेजन्स का अटैक भी हो रहा था. बाहर से इस टाइम पे मंगोल्स जो कि चंगेज खान के अंडर थे, उन्होंने ट्रांसक्सिनिया को जो साउथ ईस्ट ईरान में थी उस पर कब्जा किया. और उसके बाद दिल्ली सुल्तनत को भी उनके अटैक्स को जो था वो सहन करना पड़ा. मंगोल अटैक ऑन दिल्ली सल्तनत इंक्रीज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक. और इस तरह से दिस फोर्स द 2 रूलर्स टू मोबिलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी. जो वो पहले क्या किस पे यूज कर रहे थे, एक्सपेंशन पे यूज कर रहे थे. जो वो एक्सटर्नल फ्रंटियर पे एक्सपेंशन यूज कर रहे थे, डाउन साउथ तक आर्मी भेज रहे थे. अब वो उनको आर्मी दिल्ली में रखनी पड़ रही थी क्योंकि मंगोल्स अटैक कर रहे थे. अब मंगोल्स को जो है एनकाउंटर करने के लिए उनको स्टैंड बाय लेना पड़ रहा था. तो एक्सपेंशन रुक रहा था. दिल्ली से अगर दिल्ली में नहीं होगी तो मंगोल्स कब्जा कर लेंगे, समझ रहे हो ना. और दिल्ली जो कैपिटल थी जहाँ पर वो रह रहे थे उसको प्रोटेक्ट करना तो बहुत ज़रूरी था. तो वी हैव नाउ अंडरस्टूड कि जो चीफटेंस थे उनके रोल्स क्या थे, क्यों वो स्लेव्स को फेवर करते थे, किस तरह से वो चेक करते थे कि इन चीफटेंस के पास ज़्यादा पावर ना चली जाए और ये हमारे लिए ही खतरा ना बन जाए. Right, on the next page you will see the differences categorized in between the Alauddin Khilji's region and Muhammad Tughlaq. दोनों ने बहुत ह्यूज आर्मी जो थी मेंटेन कर दी थी. अंडर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली वाज अटैक्ड ट्वाइस, बट
during the Muhammad Tughlaq period, when Sultanate was attacked, Mongol army was being defeated earlier by Muhammad Tughlaq. राइट. अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन जो कि उसने सिरी में बनाया था. जब रिमेम्बर हमने दिल्ली की इंपॉर्टेंट प्लेसेस पढ़ी थी, सिटीज पढ़ी थी हमने, तो उसमें सिरी भी था. तो अलाउद्दीन ने सिरी में अपने नए गैरिसन टाउन्स बनाए. लेकिन इसने क्या किया, जो मोहम्मद तुगलक था, इसने वो पुरानी 4 सिटीज में से ही अपनी एक शहर जो दिल्ली खुलना के नाम से था, उसको पहले अपना वहां पर गैरिसन टाउन बनाया. और बाद में जब उसने साउथ में इन्वेजन्स किए तो उसने पूरे के पूरे रेजिडेंट्स को यहाँ से उठाया और उनको वो दौलताबाद साउथ में ले गया अपनी नई कैपिटल बनाने के लिए, जो कि बाद में लेटर ऑन यू विल लर्न दैट इट वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल. और इसकी वजह से भी उसको बहुत ज्यादा डिजास्टर जो था वो उसको सहन करना पड़ा. नाउ अब तुगलक में अगर सैनिकों को देखा जाए तो उनको फीड कैसे किया जाता था. उनको 50% जो टैक्स लाइव था उन टैक्सेस से उनको दिया जाता था. और इसमें भी ऐसे ही था कि सुल्तान जो था एडिशनल टैक्सेस करता था. और उसकी बारे में क्या हुआ, तुगलक की बारे में एक अकाल भी पड़ा, जिसकी वजह से उसके जो एक्सपेंसेस थे ना मीट करने बहुत ज्यादा मुश्किल हो गए और एडिशनल टैक्स उसको लगाना पड़ा, जो उसकी पॉलिसी के अगेंस्ट चला गया. अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जो सैलरी थी वो इकत की जगह उसने कैश में पे करना शुरू कर दिया. ठीक है, वो दिल्ली मर्चेंट से सप्लाईज लेते थे और मर्चेंट्स ये एक डर रहता था कि कहीं प्राइस जो है अपनी मर्जी से कंट्रोल ना कर दे. तो अलाउद्दीन वो प्राइजेस को भी कंट्रोल में रखता था और बहुत ही केयरफुली वो देखता था कि कोई भी प्राइस को जो है अननेसेसरली हाइक ना करे, अदरवाइज दैट पर्टिकुलर मर्चेंट वाज पनिश्ड. एंड नाउ जो मोहम्मद तुगलक था ऑल्सो पेड हिज सोल्जर्स इन कैश, बट ही कंट्रोल प्राइस नहीं किया. उसने एक टोकन करेंसी चला दी. टोकन करेंसी को आप रिलेट कर सकते हो आज की जो पेपर मनी है उसकी तरह से. वो चीप मेटल से बनती थी, गोल्ड से नहीं बनती थी. लेकिन अब क्या हुआ कि ये जो चीप मेटल है वो इजीली अवेलेबल, तो लोगों ने अपना ही बना लिया. उसकी वजह से जो हुआ, ये जो नकली करेंसी तो थी वो बहुत ज्यादा मार्केट में आ गया. अगेन इट प्रूव अ डिजास्टर फॉर दिस मोहम्मद तुगलक. अलाउद्दीन के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे वो बहुत ही ज्यादा काफी सक्सेसफुल थे और क्रॉनिक्स उसको ज्यादा प्रेस करते थे कि वो बहुत ही एफिशिएंट था. उसने चीप प्राइसेस रखे और मंगोल्स की थ्रेट को भी वो सक्सेसफुली जो है वो एनकाउंटर कर सका. जबकि मोहम्मद तुगलक के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हुए वो कम्प्लीटली डिजास्टर और फेलियर हुए. उसकी टोकन मनी भी नहीं चली. वो जो लोगों को दौलताबाद लेके गया उसकी वजह से भी उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म और लॉस जो था वो सहन करना पड़ा. तो ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिफरेंसेस हमने इसके अंदर जो है वो देखे हैं. Now in the list of Muhammad Tughlaq failure was sometime forget that was the first time in the history of the Sultanate the Delhi Sultan planned a campaign to capture Mongol territory. Unlike Alauddin's defensive measure, Muhammad Tughlaq measures were convinced as a part of military offense against the Mongols. ये खास बात थी कि डेयरिंग बहुत था. उसने मंगोल्स के खिलाफ भी उनको कैप्चर, उसकी टेरिटरी कैप्चर करने के लिए भी कैंपेन्स चलाए. Now coming to let's move out in the 15th and 16th century. अटैक्स हो रहे हैं और अब आप नोटिस करोगे कि तुगलक जो थे, तुगलक्स के बाद सैयद और फिर लोधी डायनेस्टी आती है और वो धीरे धीरे करके वीक ही होते गए और दिल्ली और आगरा तक ही कन्फाइंड रह गए. जौनपुर, बंगाल, मेवाड़, गुजरात, राजस्थान और जितना भी साउथ में जो था सब राजाओं ने इंडिपेंडेंट हो गए. इनके दिल्ली सल्तनत का वहां पर कुछ भी नहीं रहा. दे बिकेम इंडिपेंडेंट स्टेट एंड दे प्रॉस्पर देयर कैपिटल्स. और अफगान्स और राजपूत्स भी जो थे उनका भी हमने यहाँ पर अब इमर्जेंस हमने देखना शुरू कर दिया. वो भी आसपास के एरियाज में शुरू करने लगे. अब एक इसी दौरान शेरशाह सूरी का एक पीरियड आता है जो कि 1540 से लेके 1545 तक रहता है, जिसने बिहार से अपना करियर शुरू किया और इवेंचुअली ही चैलेंज एंड डिफीटेड द मुगल एम्परर हुमायूं. Sher Suri captured Delhi and established his own dynasty, although the Suri dynasty was only for 15 years.
but it introduced an administration that borrowed elements from Alauddin Khilji and made them more effective. Sher Shah Suri's administration became the model. It was like appreciated, and it was so good that it was like followed by the great king emperor, Mughal emperor Akbar also. So this was all which happened during the period of Delhi Sultanate. एंड उसके बाद हम फिर मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर. बट लेट्स सी व्हाट एल्स वाज हैपनिंग देयर इन द कंटेम्पररी टाइम, यानी कि वर्ल्ड में इस टाइम क्या हो रहा था जब हमारे यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का ये सब चल रहा है. तो बाहर की कंट्रीज के अंदर जो था वो रिलीजन वॉर चल रहे थे इन द नेम ऑफ क्रूसेड्स. रिलीजियस वॉर्स कैसे चल रहे थे, लाइक सोसाइटी के अंदर फ्रांस के अंदर 3 ऑर्डर जो थे 11th सेंचुरी में एस्टेब्लिश हो गए थे. 3 ऑर्डर मीन्स द सोसाइटी वाज डिवाइडेड into 3 classes. One who prayed, that are called priests. Those who fought, यानी कि आपके warriors हो गए, and those who tilled the land, those were known as peasants. तो 3 divisions में आ गई थी सोसाइटी और was supported by the church. और एक न्यायी वॉरियर ग्रुप जिसको नाइट्स बोलते थे वो भी इमर्ज हो रहा था, और जो चर्च था तो वो पीस ऑफ गॉड को फैलाने के लिए प्रोपोगेट करता था. The attempt was to direct warriors away from conflict amongst themselves and send them instead to a campaign against the Muslims who have captured the city of Jerusalem. उसको कैप्चर करने के लिए उनको ये जो रिलीजियस वॉर हो गया कि मुस्लिम्स को ऊपर जाके उनको कब्जा करो या उनको उनके ऊपर रूल करना है, इस तरह का रिलीजियस वॉर जो था that was going outside India. So this was all for this chapter. Do watch the video, do read the chapter, and be ready with your doubts. In today's doubt class, I will be taking all doubts relating to this chapter, and in the next class, we will be moving to your next chapter. So that's all from my end for this chapter. See you in the live class. Bye bye.